Yeah, hi, good afternoon, friends. Once again, I am back. I'm sorry, guys, because of got lost, and again we are back. So, friends, I'm SK Sharma. I'm representing Cumberland College as a marketing manager, North India. I'm today here. I am with Spectrum Studies and Amberjeet ma'am. First of all, I would like to thank Spectrum Studies and Amarjit ma'am for providing me this opportunity so that हम आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स के साथ व्यूअर्स के साथ फेस टू फेस लाइव जाके बातचीत कर सकें आपके क्वेश्चंस आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट सस्कैचुअन एंड Cumberland कॉलेज उससे पहले अगेन एज आई वाज सेइंग we should all thank and appreciate Indian government, the local administration, the health professionals, and the people. They are involved in essential care services. Really, really, they are doing a wonderful and commendable job. They are putting their lives in risk so that we all are become safe and comfortable. So we must not forget to appreciate and thank them. एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़ जो भी लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है हमें मास्क यूज़ करना है सैनिटाइजर यूज़ करने हैं वी शुड ऑल दो लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन है बट स्टिल वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड डेफिनेटली follow the instructions of the administration and the government. So friends, like we were discussing today, we would discuss about Cumberland College. It is a public college in Saskatchewan. What are the programs in Cumberland College? What are the opportunities there in Saskatchewan? What are the benefits of going to Saskatchewan? And what are the eligibility criteria? Definitely we'll be discussing that. सो कॉलेज के बारे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले we would be discussing something about Saskatchewan, and again I am mentioning Spectrum Studies and Amarjeet ma'am. They people are really wonderful. They are very experienced and knowledgeable person. The team of Spectrum Studies, they are very good. They are very excellent. So any one of you, they are planning about overseas education. They have their offices in Ludhiana. They have 3 branches in Ludhiana. आप स्पेक्ट्रम स्टडीज़ की टीम के साथ अमरजीत मैम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्वेरीज और योर प्रोसेसिंग फॉर कनाडा स्पेशली फॉर कम्बरलैंड कॉलेज एंड यस फॉर कनाडा ऑल्सो. So as I mentioned, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है and they are very knowledgeable person, especially for Canada, the counseling and visa filing and all. And I must say they have their IELTS center also, जिसमें से कि इनके सेंटर्स एक दो IELTS centers they are within the campus of say school or college, so you can always get the benefit. And as mentioned by them, Amarjeet ma'am and Spectrum team, they are not charging anything for visa processing, all the services are free, especially for visa services. So you can always connect with them, contact with them for more detail, more information about overseas studies and Canada. सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे सस्कैचुअन की. सो लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सस्कैचुअन. सबसे पहले अगर हम लोकेशन वाइज बात करते हैं तो वी कैन से वी आर मोर और लेस काइंड सेंट्रली लोकेटेड इन कैनेडा. Sorry, like bordered one side with Alberta and second side with Manitoba, or we can say we are bordered Alberta in west and Manitoba in east, and south is surrounded by USA. So Saskatchewan, it is a place which is also known as the land of living skies. लैंड ऑफ लिविंग स्काइज के नाम से भी सस्कैचुअन को फेमस है सस्कैचुअन बिकॉज इट इज़ अ प्लेस इन कनाडा जहाँ पे पूरे साल में सबसे ज़्यादा सनी डेज या सनशाइन रिकॉर्डेड है. सबसे ज़्यादा सनशाइन होती है यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस सनशाइन और सनी डेज मोस्टली द स्काईज क्लियर्स, सो दैट इज़ वाई दैट इज़ ऑल्सो known as land of living skies. And they are famous for other benefits along with like they are famous for their natural scenery beauties and sunshine, sunsets, northern lights. And important things about Saskatchewan is this is a place which is known for their agriculture industry and for their natural resources. So the Saskatchewan is supported primarily by two industries, that is agriculture and natural resources. So I can say we are supplying or almost 40 to 50% of Canada's food supply or crop supply, that is through Saskatchewan.
And secondly, Saskatchewan, that is known for their natural resources, like we have oil, we have uranium, we have potassium, and we have diamond mines. Saskatchewan में diamond mines भी हैं, natural resources भी हैं, like oil, uranium, potassium, and all these are very expensive items. And that is also very good in Saskatchewan if we talk about part-time jobs. And people, yes, the people, they are very friendly. They are very supportive, they are very helpful. The local community people, especially if we talk about local Canadian culture, local Canadian community people, they are very friendly. And I can say we are the leaders in production of a few crop items like wheat, durum, mustard seed, lentils. We are feeding not only to Canada but also to world. So I can say Saskatchewan is one of the best places to live, work, and study. Why? Because first of all, because of its welcoming environment, you can literally experience true Canadian culture and life there, and that is again in peaceful and secure communities. And Saskatchewan is a place where a student can literally feel all the four seasons. Yes, I can say in Saskatchewan, a student can feel summer also, winter, autumn, and spring. And in चारों seasons में, हर season में I can say the sunshine is there. हर season में वहाँ धूप होती है, और हर season student experience कर सकता है 3-3 4-4 महीने के लिए. And जहाँ Saskatchewan की बात होती है, जो दो है Saskatchewan में, they are famous and known, and that is Saskatoon, the main big city, and the second main city, that is Regina, that is the capital of Saskatchewan. So दोनों cities के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, एंड दोनों cities के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से Cumberland कॉलेज के जो campuses हैं, they are easily accessible. So if we talk about the key highlight points about Saskatchewan or benefits of Saskatchewan, why you can think about studying in Saskatchewan. First of all, the programs we are offering in Cumberland College, ज़्यादातर प्रोग्राम और आई कैन से सारे प्रोग्राम्स आइदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो इंडस्ट्रीज हमने बात की एग्रीकल्चर और माइंस, इनसे रिलेट करती है. सो द प्रोग्राम्स दे आर वेरी मच करियर फोकस्ड. जो एक बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, सो जो कनाडा का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसके मुकाबले सस्कैचुअन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहता है. दैट मीन्स वी कैन से येस, दैट इज अ इंडिकेशन, येस द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर. एंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है सस्कैचुअन में, दैट इज लो, मिनिमल एज कम्पेयर विद अदर डेस्टिनेशंस इन कनाडा. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे पंजाब और हरियाणा में, लाइक दे आर एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट प्रोविंसेस या प्लेसेस इन इंडिया, तो पंजाब हरियाणा में कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी क्या आती है, और सेम टाइम पे दिल्ली और बॉम्बे में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आती है. सो दैट इज एग्जैक्टली सेम विद सस्कैचुअन, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट प्रोविंस, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज लो. एंड जैसे मैंने बोला, दिस इज अ प्लेस विद जहाँ पे आप एक ट्रू कैनेडियन एटमोसफियर एंड कल्चर फील कर सकते हो, एंड यू वुड बी लिटरली स्टडिंग एंड लिविंग विद लोकल कम्युनिटी पीपल, लोकल कैनेडियन पीपल. दैट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल. वो हमेशा आपको हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने में, आपके लोकल कॉन्टेक्ट्स इंप्रूव करने में, लोकल कल्चर को समझने में, जानने के लिए. And yes, we can say in Saskatchewan the visa success rate is also very good. And जो एक important USP है about studying in Saskatchewan, that is their SINP pathway. SINP stands for Saskatchewan Immigration Nominee Program. So I'm not from immigration, so I cannot discuss more about SINP. What is SINP, how it works, what are the eligibility criteria, what are the benefits of SINP, इसको आप कैसे इस पाथवे को कैसे आप ले सकते हो, उसके लिए सॉरी गाइज, आप लोग बात कीजिए स्पेक्ट्रम की टीम के साथ, आप लोग बात कर सकते हैं अमरजीत मैम की टीम के साथ. They would help you in getting the knowledge or information about SINP, how that is useful for international students. एंड अगर हम एक एवरेज एनुअल अर्निंग्स की बात करते हैं, तो वो सस्कैचुअन में दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52,000 जो एवरेज अर्निंग्स रहती है सस्कैचुअन में. सो आई कैन से दीज आर द सम मेन USPs और द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन सस्कैचुअन, और आई कैन से द मेन बेनिफिट्स ऑफ सस्कैचुअन.
कम्बरलैंड कॉलेज की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, कम्बरलैंड कॉलेज इट इज़ अ पब्लिक कॉलेज हैविंग देयर DLI नंबर, एंड कोई भी स्टूडेंट जो कम्बरलैंड कॉलेज में पढ़ने आता है ही वुड बी एंटाइटल्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क अपॉर्चुनिटी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट कम्बरलैंड कॉलेज में पढ़ेंगे उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क अपॉर्चुनिटी अवेल करने की अपॉर्चुनिटी बेनिफिट होता है। दे कैन गेट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क अपॉर्चुनिटी वंस दे फिनिश देयर स्टडीज़। सो क्या प्रोग्राम्स है बेसिकली, 4 प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं कम्बरलैंड कॉलेज में। एंड लेट मी टेल यू, जो चारों प्रोग्राम्स हैं, चारों प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है, आइल्स की रिक्वायरमेंट वो सेम है, दैट इज़ आइलेट्स ओवरऑल 6.5। तो सारे प्रोग्राम, जो 4 प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे, सभी के लिए इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है, आइल्स रिक्वायरमेंट है, वो है 6.5 बैंड्स ओवरऑल। 3 प्रोग्राम के लिए दैट इज अप टू 5.5 इन 1 मॉड्यूल, एंड फॉर 1 प्रोग्राम दैट इज 6.5, नो बैंड लेस देन 6। एंड कम्बरलैंड कॉलेज में हम लोग PT वाले स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो PT रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया, तो 3 प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट है 63 ओवरऑल, नो कंपोनेंट लेस देन 50, एंड फॉर 1 इंडिविजुअल प्रोग्राम दैट इज 58, नो कंपोनेंट लेस देन 50। सो अगर हम प्रोग्राम वाइज बात करें कि क्या क्या प्रोग्राम्स हम कम्बरलैंड में ऑफर कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है कम्बरलैंड कॉलेज में, दैट वी कॉल्ड इज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। इट इज़ अ 1 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 1 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो कि हम टिस्टेल कैंपस में ऑफर कर रहे हैं। हमारे टोटल 3 कैंपसेस हैं कम्बरलैंड कॉलेज में, दैट इज टिस्टेल, मेलफोर्ट एंड नेपेविन। 3 कैंपसेस पे हम ये 4 प्रोग्राम ऑफर करते हैं, और सारे जो तीनों कैंपसेस हैं, they are hardly they are not more than 2.5 hour or maximum 3 hours drive from the 2 main cities or from each other. एंड अगर हम ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, टिस्टेल कैंपस पे हम ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। एंड जो टिस्टेल कैंपस में हम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, इसकी जो फीस है वो है $18,000 कैनेडियन डॉलर, 18,000 कैनेडियन डॉलर इसकी फीस है। आइल्स रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बात की 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5। एंड अगर हम PT स्कोर की बात करें पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, दैट इज 63, नो कॉम्पोनेंट लेस देन 50। सो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी +2 कंप्लीट की है एंड दे आर हैविंग से परसेंटेज ऑफ ओवरऑल 55, और आई कैन से इन बिटवीन 50 और 55 जिनकी परसेंटेज है, प्रेफरेबली 55%, अगर उससे 50 और 55 के बीच में स्टिल दे कैन अप्लाई। तो जो स्टूडेंट्स +2 में जिनकी अप्रॉक्सीमेटली 55% है एंड नो सब्जेक्ट लेस देन 50, दे कैन कम एंड ज्वाइन फॉर दिस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, 1 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। एंड दिस इज़ अ प्रोग्राम जहाँ पे आप सीखोगे एक ऑफिस में कैसे काम करना, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी होती है, मेल्स कैसे करनी होती हैं, क्या पेपर वर्क्स आपने कंप्लीट करने हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस करने, दैट इज समथिंग लाइक दिस। सो दूसरा हमारा प्रोग्राम है कंटिन्यू केयर असिस्टेंस। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम, वी कॉल्ड इट CCA, कंटिन्यू केयर असिस्टेंस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दैट इज़ समहाउ रिलेटेड विद हेल्थ केयर। लाइक ये प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट दे वुड बी वर्किंग एज अ काइंड ऑफ से community health worker kind of establishments में they would be working, or maybe they can work in like old age home cares, or the institution where provide care for special need people, उस टाइप की establishments में students काम कर रहे होंगे। एंड जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, अगेन दैट इज सेम, IELTS 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5। अगर हम PT की बात करें, दैट इज 63, नो कॉम्पोनेंट लेस देन 50। What about Saskatchewan PR? Jasprit ji, we would be discussing surely about the questions later on once we finish with the programs. So, अगर हम कंटिन्यू केयर असिस्टेंस की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी +2 कंप्लीट की है विद 55%, नो सब्जेक्ट लेस देन 50, दे कैन कम एंड ज्वाइन। एंड वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी GNM और BSc नर्सिंग किया हुआ है, वो स्टूडेंट भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो स्टूडेंट GNM BSc नर्सिंग वाले हैं, वो एक बार अपनी एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम टीम के साथ शेयर कर लीजिए। दे विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द कॉलेज एंड वी विल असेस द एप्लीकेशन, एंड देन इफ द असेसमेंट इज ओके, दैट इज डन, you would be allowed to join this college, and definitely +2 with any background, they are more than welcome. कंटिन्यू केयर असिस्टेंट जैसे मैंने बताया एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी आई कैन से जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर द डिटेल्स अबाउट इंडिविजुअल प्रोग्राम, लाइक सब्जेक्ट वाइज क्या होगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोग्राम में, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ कॉलेज की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम स्टडीज़ की टीम के साथ बात कर सकते हैं।
they would help you, they would guide you about knowing the subjects in particular program, about the career opportunities and other benefits. So moving to third program, Cumberland College में जो हम ऑफर कर रहे हैं, that we call building system technician. Friends, definitely I can see we are getting questions, but yes, let's discuss the program. हो सकता है during the programs आपके कुछ question के answer मिल जाए जो हम program discuss कर रहे हैं, and yes, उसके बाद we'll be taking up the questions definitely. So third program अगर हम बात करते हैं, that is building system technician program, we call this BST, building system technician. ये हम नेपोविन कैंपस में ऑफर कर रहे हैं. अगेन IELTS 6.5, नो बैंड लेस देन 5.5. एंड अगर हम बात करते हैं PT की 63, नो कॉम्पोनेंट लेस देन 50. सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट. बिल्डिंग सिस्टम टेक्नीशियन एक बहुत अच्छा टेक्निकल प्रोग्राम है जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सस्कैचुअन में. सो स्टूडेंट्स जिन्होंने +2 में मैथ्स किया हुआ है स्टडी, दे आर एलिजिबल फॉर दिस. जिन्होंने मैथ्स के साथ +2 की हुई है वो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं. या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने 10th के बाद 3 साल का पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ होता है, स्पेशली प्रेफरेबली विद civil engineering, they are also welcome, and from other engineering background also they can, but still for other stream of polytechnic diploma, I would say आप लोग एक बार application अपनी share कर लीजिए. We will go with the assessment, and once the assessment is done, then you can always apply for the offer letter. So building system technician is a program जहाँ पे अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में आपको बताया जाएगा. दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम. एंड अगर हम फोर्थ प्रोग्राम की बात करते हैं, द फोर्थ प्रोग्राम हेयर, दैट इज़ ऑल्सो very good program and very good opportunities, that is agriculture science certificate. Again, it is a 1-year undergraduate program. We are offering this program at Melfort campus. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एग्रीकल्चर साइंस सर्टिफिकेट के लिए हमारे जो IELTS रिक्वायरमेंट है 6.5, नो बैंड लेस देन 6. यस, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम 5.5 अगर एक किसी मॉड्यूल में है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एग्रीकल्चर साइंस सर्टिफिकेट के लिए 6.5, नो बैंड लेस देन 6 का स्कोर चाहिए. और अगर हम PT की बात करें, दैट शुड बी ओवरऑल 58, नो कॉम्पोनेंट लेस देन 50. तो आपने नोटिस किया होगा बाकी सभी प्रोग्राम में हम 63 PT एक्सेप्ट कर रहे थे ओवरऑल, यहाँ पे 58 है, बट 6.5, नो बैंड लेस देन 6. सो सभी प्रोग्राम्स जो हैं, अगर मैं आपको बात करूं चारों प्रोग्राम्स की जो फीस है, सभी प्रोग्राम की फीस है अप्रॉक्सीमेटली 18,000 कैनेडियन डॉलर्स, 18,000 कैनेडियन डॉलर फीस है सभी प्रोग्राम्स की. एंड एप्लीकेशन फ़ी जो कॉलेज की है वो है 140 कैनेडियन डॉलर. एंड स्टूडेंट्स दे कैन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी ऑल्सो थ्रू फ्लाईवायर. सो दीज आर द प्रोग्राम्स. एंड अगर जैसे मैंने बात की थी जो शुरू में सस्कैचुअन के बारे में, एग्रीकल्चर, माइंस, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, तो you can notice either directly or indirectly all the 4 programs are related with your agriculture and your mining. Building system technician and agriculture science, definitely they are directly related with your either agriculture or mines, because building system technician कहीं पे भी agriculture या mines की बात कर रहे हैं तो we need big warehouses, we need storage places and other places. So building system technician people can go there for jobs. And agriculture science certificate, that is directly related with agriculture. Gagan, definitely PT 58 acceptable. As I discussed, I'll be taking questions one by one once we'll end up with the programs. And office administration and continuing care assistance program, they are also indirectly related with agriculture and natural resources. कैसे? तो जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी की, चाहे वो आपके माइंस हैं, चाहे we need office administration people to do the official work, to do the paper work. उसके लिए ऑफिस एक रिक्वायर्ड है. तो ऑफिस चलाने के लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का कोर्स है, जो लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड जहाँ पे भी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, माइंस की बात हो रही है, डेफिनेटली द मैन पावर वुड बी देयर. लोग वहाँ पे काम करेंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, तो उन लोगों की टेक केयर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, वहाँ की लोकेलिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए टेक केयर के लिए वी हैव दिस कंटिन्यू केयर असिस्टेंस प्रोग्राम, सो दैट वी कैन टेक केयर अबाउट the manpower or the local community there. So friends, as I mentioned, you can clearly see all the 4 programs. They are directly, indirectly related with your agriculture and mines.
एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ आप लोग भी रिसर्च कीजिए. You can notice every eighth job in Canada that is either directly or indirectly related with your agriculture or food. That can be directly in agriculture fields, or maybe food processing, food packing, transportation, logistics of these agriculture crops. That how they are related. And अगर हम माइनिंग की बात करें तो यू कैन नोटिस जो टॉप हाईली 10 या टॉप हाईली 5 हाईली पेड जॉब्स हैं कनाडा में. सो माइनिंग इज़ वन ऑफ देम. अगर माइनिंग इंडस्ट्री में कोई जॉब करता है तो ही वुड बी हाईली पेड डेफिनेटली. जो भी हम बात कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप लोग प्लीज़ यूटिलाइज द टाइम. अभी जैसे लॉकडाउन है, हम लोग घर पे हैं. यू कैन ऑलवेज गूगल द थिंग्स. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो. अगेन यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद स्पेक्ट्रम स्टडीज टीम. एज आई सेड, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल टीम. तो दे वुड डेफिनेटली हेल्प यू, गाइड यू. सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स. हम बात करते हैं जो काम्बरलैंड कॉलेज की, जो हमने बात की. And let's see about the questions if we have any. What about Saskatchewan PR? Jaspreet ji, as I mentioned, I can just give you a suggestion. आप प्लीज़ गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाके सर्च कर रही अबाउट SINP. I can just say that SINP is very good and best pathway to get settled in Canada. प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है. वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा. और यू कैन अगेन कनेक्ट विद स्पेक्ट्रम स्टडीज टीम. दे वुड हेल्प यू. सो जसप्रीत जी, या जो भी और दे वांट टू नो अबाउट Saskatchewan PR, so I would request you, आप प्लीज़ जाके वेबसाइट पे या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं अबाउट दिस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इन सस्कैचुअन. जसप्रीत, अभी जैसे मैंने बात की है, वी कैन सी, वी हैव नोटिस द लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन सस्कैचुअन एज कम्पेयर टू एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ कैनेडा. सेकेंडली, जो इंडस्ट्री की मैंने बात की, एग्रीकल्चर और माइंस की, that always have some kind of jobs available. So अगर हम बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की, तो I can say that should not be a problem in Saskatchewan. The part time jobs are very much available there. Is there any scholarship? Singh Pavneet ji, good question. I know many of the students, they are very much concerned or focused about scholarship. So अगर हम scholarship की बात करते हैं तो friends, to be frank, from India as such, we are not offering any kind of entry level scholarship. But yes, as I suggested, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए एंड वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कीजिए what other opportunities are there. So you can notice kind of scholarships are ongoing there for current students. जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स चलती रहती हैं. सो व्हाट इज़ दैट, हाउ इट वर्क्स. सो वंस यू गो एंड जॉइन द कॉलेज, तब आप वो जाके एक्सप्लोर कर सकते हो एंड अवेल कर सकते हो. बट एज ऑफ नाउ इंडिया से अभी कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप्स ऑफर नहीं की जा रही हैं. PT 58 accepted in agriculture course. Gagandeep Singh, yes, for agriculture science certificate. As I said, either IELTS 6.5 no band less than 6, और PT में अगर आपका स्कोर है 58 no component less than 50, you are acceptable for agriculture science certificate. 20 hour working, right? It's good place to find work. Yes, Amarjit, you are correct. Like other provinces and other destinations, 20 hours is during study the student can work, and definitely 40 hours of the studies. So they can always. Yes, Singh Pavneet, yes, for students with 80% marks. सो अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, सभी प्रोग्राम्स जो हम बात कर रहे हैं काम्बरलैंड में, चारों प्रोग्राम्स, ओवरऑल परसेंटेज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दैट इज समवेयर शुड बी इन बिटवीन 50 to 55. 50 का से तो कम नहीं होना चाहिए. एंड इंडिविजुअली भी किसी सब्जेक्ट में आपकी अगर सब्जेक्ट में 50 से कम है तो देन आई वुड से सॉरी, बहुत मुश्किल हो जाएगा कॉलेज के लिए आपको एक्सेप्ट करना. सो ओवरऑल परसेंटेज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर 55, नो सब्जेक्ट लेस देन 50. तो गाइज, अगर और भी कोई क्वेश्चन है, लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेरीज. सो दिस इज ऑल अबाउट काम्बरलैंड कॉलेज. जैसे हमने बात की, वी आर एक्सेप्टिंग IELTS ऑल्सो, वी आर एक्सेप्टिंग PTU ऑल्सो, एंड द प्रोग्राम्स दे आर वेरी मच करियर फोकस्ड प्रोग्राम. दे आर वेरी मच प्रोग्राम जहाँ पे कि आई कैन से द अपॉर्चुनिटीज आर देयर. सो
Friends, let's do a recap of the things for those students or participants who they have just joined in. We have discussed about location, Saskatchewan, we can say centrally located, and इसके साथ में अगर हम बात करते हैं Cumberland कॉलेज की, तो we have three campuses in Saskatchewan, that is Tisdale, Nipawin and Melfort. टू मेन सिटीज़ हैं सस्कैचुअन में फेमस हैं, दैट इज़ Regina एंड Saskatoon. दोनों सिटीज़ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. स्टूडेंट्स can come to any of the cities and they can easily access any of the campuses of Cumberland College. प्रोग्राम्स की अगर हमने बात करें, हम जैसे मैंने डिस्कस किए 4 प्रोग्राम्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं, एंड चारों अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम है, 1 ईयर प्रोग्राम्स हैं. आइल्स रिक्वायरमेंट 6.5 सभी के लिए सेम है, and no component less than 5.5, and for one particular program that is 6.5, no band less than 6. Application fee, yes, application fee for Cumberland College is $140. $140 application fee है, वो आप ऑनलाइन फ्लाईअवेयर के थ्रू भी पे कर सकते हैं. Benefits of coming to Saskatchewan, yes, you can always explore the things as I discussed. So to mention few: low rate of unemployment, low cost of living, career focused programs, and you would be living with local community, and the SINP also. College fee, that is approximately 18,000 Canadian dollars for all the 4 programs. कंडीशनल ऑफर लेटर की अगर हम बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, अभी हम कोई कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं इशू कर रहे हैं. तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट आइल्स में ये मेंशन स्कोर्स हैं, दे कैन कम एंड ज्वाइन. अगर इनटेक की बात करें तो वी आर रनिंग September intake. We are open for September intake, and we are issuing offer letters also. We are getting applications. Students are paying their fee also. So yes, you are also welcome. You can always come and join and discuss with the Spectrum Studies team about the programs and getting the offer letter issued. So ऑफर लेटर की अगर हम बात करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है ऑफर लेटर के लिए, आप कह सकते हो विद इन 2 वीक्स, 14 to 15 डेज़ के अंदर जनरली ऑफर लेटर आ जाता है. बट ऑन एवरेज अगर हम बात करें 1 वीक to 10 डेज ऑफर लेटर इशू हो जाता है. तो मैक्सिमम टाइम इज़ अराउंड 2 वीक्स यू कैन से. एंड एक गैप की बहुत स्टूडेंट्स को कंसर्न रहता है, पॉइंट रहता है. सो अगर हम गैप वाइज बात करें तो वी आर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स विद अ गैप ऑफ से अप टू 2 or 3 years, प्रोवाइडेड यू कैन गिव सम डॉक्यूमेंटेशन एज अ प्रूफ कि आपने क्या काम किया है आफ्टर यूर स्टडीज़ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे आप. सो यू कैन ऑलवेज शेयर द डॉक्यूमेंट्स एज आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपका कोई गैप से रिलेटेड कोई ऐसी प्रोफाइल है जिसमें गैप ज़्यादा है, या आपको डाउटफुल है कि इतने गैप के साथ आप एक्सेप्टेबल होगे नहीं होगे Cumberland कॉलेज में, you can always share your documents with ma'am Amarjeet and the team of Spectrum Studies. They will forward the document to the college, and after assessment, if that is positive, yes, you are more than welcome. You can come and join Cumberland College. So friends, I think I have tried to cover all the points about studying in Cumberland College. What are the program requirements, what are the eligibility criteria, and what are the other benefits. So still, if any point I missed out or I skipped, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और भी बाद में if you have something in your mind, later on also you can always connect with the team of Spectrum Studies or Amarjeet ma'am. And yes, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, आप प्लीज़ टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए. जैसे मैंने बोला, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं अबाउट द प्रोग्राम्स वी आर ऑफरिंग इन कॉलेज. क्या क्या प्रोग्राम्स हम कॉलेज में ऑफ़र कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोग्राम वाइज क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सब्जेक्ट उसमें आप पढ़ोगे, एंड what can be the benefits, what other services college is offering. So yes, definitely once you visit the website of the college, बहुत information आपको मिलती है वहाँ पे. और and yeah, thank you all. I just want to say, please आप एक बार सोचिए, एक बार चीज़ें एनालाइज करके देखिए. इफ़ यू आर गोइंग टू वन डेस्टिनेशन, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 2 or 3 years at a particular destination, and you are spending lakh of rupees, so what exactly you will be getting, I can say एक वर्ड होता है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. वो 2-3 साल आपने लगाने, आपने स्पेंड किए हैं कहीं पे भी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर प्लेस. कोई भी कंट्री की बात करें, कोई भी डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, एंड यू आर स्पेंडिंग lakhs of rupees in फीस.
तो 2-3 साल के बाद what exactly you are getting in return, that you should always consider while finalizing your overseas study destination plans. So आप उस चीज़ को कंसिडर कीजिए एंड एक्सप्लोर कीजिए, चीज़ों को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए. डेफिनेटली you would be in better situation to finalize about your overseas education destination. Thank you, friends. Thank you all. And I know you all are aware, and not to mention, but still, it's my responsibility and duty. Please follow social distancing, using masks and sanitizer, and always follow the regulation instructions by the administration and government. Thank you all. Thank you, friends. Have a nice day. Take care. And I hope everything is settled down and everything would be normal soon, and we all would be back to normal life. Thank you.